Good evening, everyone, and thanks for joining in. On behalf of Jagran New Media, I welcome you all to this social policy dialogue that we've planned with UNICEF. As we know, UNICEF works in some of the world's toughest places to reach the world's most disadvantaged children. My name is Parikshit Bhardwaj, and I'm the head of content for JagranJosh.com, which is the education and career portal of Jagran New Media. At Jagran New Media, our stated aim is to create factual and credible content to empower New India through knowledge, information, and voice. In view of this, we find a natural synergy with UNICEF and are happy to partner for this dialogue that we are sure will go a long way in proposing solutions for children in the post-COVID-19 world. The theme for today's dialogue is Rights of Children During COVID-19. We'll keep this session conversational and discuss the issues in an informal environment, and also keep the session bilingual so that the takeaways can reach far and wide. My job as a moderator becomes easy today as we have two very eminent panelists who have joined us to share their views on this very important topic concerning the situation of children during the ongoing pandemic. So let me quickly introduce them and then we can go ahead with the session. Our first panelist is Dr. Yasmin Ali Haq, who is the UNICEF representative in India. She has an MBBS degree as well as a master's in science in health systems management. She has been with the UNICEF since 1996, and during this long and distinguished tenure, she has contributed significantly to national policy analysis and strategic planning. Second panelist is Dr. Dheer Jhingran, who is the founder director of Language and Learning Foundation, which is an NGO that works with state governments to bring about transformative change in the teaching and learning process of language. He is also an ex-IS officer and has made tremendous contributions in setting up foundational learning programs in several countries in Asia and Africa and several states in India. I welcome both our panelists and look forward to a very engaging discussion. First question would be to you, Dr. Yasmin, where I'd like to understand from you, how has the school closure impacted children? जो हमारे schools इस pandemic में बंद रहे हैं, उनका बच्चों पे क्या प्रभाव हुआ है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों की जो दिक्कतें हैं वो आप पब्लिक के लिए पेश कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था एक स्वास्थ्य संकट से, लेकिन हमने बहुत ही क्विकली वी रियलाइज्ड ये असल में एक बाल अधिकार का संकट है, क्योंकि बच्चों का जो रूटीन होता है उनका सीखने का, दोस्तों के साथ खेलने का, बाहर जाने का, ये सब डिस्टर्ब हो गया है। बच्चे जो स्कूल का जो रूटीन होता था, सुबह उठकर मुँह हाथ धोकर नाश्ता खाकर वो स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, ये पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। ऐसे 15 लाख स्कूल, सारे भारत में 15 लाख स्कूल मार्च से जब बंद हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो करीबन 30 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल पहले नहीं जा रहे थे, कुछ बच्चे अभी स्कूल बंद होने की वजह से उनका डेली रूटीन नहीं है, वो सीख नहीं रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हम ये देखें कि बच्चे कैसे अपना शिक्षा कंटिन्यू कर सकें। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सुन रहे हैं कि बच्चे
डिजिटल माध्यम से सीख रहे हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम तो सबके पास नहीं पहुंच रहा है। My next question would be to you, Dr. Chindran. What is the impact on children's retention of earlier learning? जो बच्चों ने इस पैंडेमिक से पहले की पढ़ाई की है, वो लर्निंग क्या वो अभी तक रिटेन कर पाए हैं? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हम लोगों ने, हमारी संस्था ने 3 राज्यों में सर्वेक्षण किया, जैसे यास्मीन ने कहा, ये देखने के लिए कि कितने बच्चों के पास इस समय जो मोबाइल या अन्य तरह के ऑनलाइन क्लासेस करने की सुविधाएं हैं, और देखा कि वो जो प्रतिशत है वो 6, 8, 10, 15 या 20 से आगे नहीं बढ़ता है। एक और सर्वेक्षण हमने ये किया कि बच्चों के सीखने का स्तर अभी क्या है। मार्च में जो उनकी पढ़ाई बंद हुई थी, तो आज क्या स्थिति है, और ये देखा कि लगभग 20 से 25% औसत तौर पे सीखने के स्तर में कमी आई है। मार्च में भी जो उनकी परीक्षाएं हुई थी या जो उनका असेसमेंट आकलन हुआ था, उसके बाद से लगभग 20-25%। और एक विशेष बात यह है कि जो बच्चे वंचित परिवारों से आते हैं, जहां पर घर पे सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके सीखने के स्तर में जो कमी आई है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, और हमारा ये मानना है कि इससे 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये कि आगामी 4-5 महीनों में हमको कुछ ना कुछ करना है जिससे कि हर बच्चे तक पहुंचा जा सके और हर बच्चे को कुछ ना कुछ शिक्षण प्राप्त हो। दूसरा यह है कि जब स्कूल खुलेंगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती समता की आने वाली है, क्योंकि ये जो अंतर पैदा हो गया है बच्चों के बीच में, पहले से भी था पर अब जो बढ़ गया है, उसको कैसे मिलाया जाए। और पूरी शिक्षा व्यवस्था की जोर इस समय यह होना चाहिए जब स्कूल खुलेंगे कि हम किस तरह से बच्चों में ये जो विषमताएं आई हैं सीखने के स्तर में, इसको कम करें। नहीं तो बहुत सारे बच्चे 5वीं 8वीं में जब परीक्षाएं होंगी तो उसमें विफल होंगे और स्कूल छोड़कर जा सकते हैं। और तीसरा जो हमने इसकी वजह से समझा वो ये है कि जब भी स्कूल खुले, पिछली कक्षाओं का जो सिलेबस है उसकी पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं। जब तक स्कूल खुलेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नई कक्षा का काम सीधे शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। टीचर के ऊपर, सबके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आप 3 महीने में सब कुछ खत्म कर दो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये रियलाइज करें कि पिछला जो काम है उसका रिवीजन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे सर्वेक्षण से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। डॉक्टर झिंगरन, इस पीरियड में हमने बहुत सी अप्रोचेस यूज की हैं विच इंक्लूड डिजिटल, ब्रॉडकास्ट, नो टेक एंड ब्लेंडेड। इसमें से कौन सी अप्रोच सबसे कारगर सिद्ध हुई है और कौन से कॉन्टेक्स्ट में? आप जरा इसके बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। जैसे अभी यास्मीन ने भी कहा कि सिर्फ डिजिटल का यूज़ करने से हम सब बच्चों तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमको अपनी रणनीतियों में एक विविधता लानी पड़ेगी, अलग अलग तरह का काम जहां जो प्रयोग हो सके। टीवी की बात हो रही है, रेडियो की बात हो रही है, कुछ छत्तीसगढ़ में जैसे लाउड स्पीकर पर भी क्लासेस की बात हो रही है। क्योंकि सबसे ध्यान हमको ये रखना है कि समता सब बच्चों तक कैसे पहुंचा जा सके, स्पेशली इस आपदा के समय। कुछ बच्चों को अगर हम छोड़ देते हैं तो चाइल्ड राइट्स के ये विरुद्ध होगा। तो क्या करें इसके लिए? मेरा ये मानना है, और हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम अब शुरू किया है, कि सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चों तक कुछ सामग्री पहुंचाएं। वर्कबुक्स हों, पढ़ने की किताबें हों, कहानी की किताबें हों, और साथ साथ शिक्षक, जो शिक्षा विभाग के अन्य कार्यकर्ता हैं, वो फ़ोन से घर जाकर मोहल्ले स्कूल में बच्चों से आमने सामने हों, उनको सिखाने का जितना हो सके आमने सामने प्रयत्न करें। और हर बच्चे की ट्रैकिंग हो, कितना बच्चे सीख पा रहे हैं। फ़ोन पर हो सकती है, SMS पर हो सकती है, ये बहुत ज़रूरी है, पर इस तक बच्चों तक कुछ सामग्री पहुंचनी चाहिए। और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, NGOs हैं और वॉलंटियर्स हैं, उनका इस समय बहुत बड़ा रोल आता है। और हमारी संस्था का इतना पॉजिटिव अनुभव अभी रहा है वॉलंटियर्स को लेकर। हर गांव में 10वीं पास, 12वीं पास, कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे जो अभी गांव में या मोहल्लों में वापस आ गए हैं, वहीं पर हैं, उन्होंने आगे बढ़कर बच्चों की इस समय जो शिक्षा जितना भी कर सकते हैं उसके लिए बहुत उत्साह है उनमें। और मैं
हमको ये बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ व्यापक तौर पे करें। और मुझे याद आती है नेशनल लिटरेसी मिशन, आप में से लोग सब छोटे होंगे तब उस समय 90 के दशक में भारत में प्रौढ़ शिक्षा के लिए पूरे देश में एक साक्षरता मिशन चला था। और उस समय बहुत वॉलंटियर सामने आए थे बिना किसी वेतन के। ऑफ कोर्स उनको सर्टिफिकेट, प्रोत्साहन, आगे कुछ लाभ मिलेगा। और उस समय जो एक लहर थी, जो एक आह्वान हुआ था कि आप सब आके शिक्षा में योगदान देंगे, ऐसा अभी क्यों नहीं हो सकता? अगर हम मानते हैं कि ये गंभीर स्थिति है, चाइल्ड राइट्स का इस समय मुद्दा है, तो हमको राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से और जिला स्तर से ये आह्वान करना पड़ेगा कि आप कि वॉलंटियर सामने आए। और हैं, लोग करना चाहते हैं। शायद इसको अभी हम प्राथमिकता नहीं दे पाए हैं स्वास्थ्य से आगे बढ़ के। पर जब हम ये समझेंगे कि इस तरह के काम के न होने का दीर्घकालीन एक बहुत नुकसानदेह इफेक्ट होगा, तो शायद इसको हम समझेंगे। और आखिरी मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा कि हमको इस समय स्कूल खुलने के समय क्या करना है, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। हमको ये पता नहीं स्कूल कितने समय के लिए खुलेंगे। इस वर्ष 4 हफ्ते के लिए हो सकते हैं, 5 हफ्ते के लिए हो सकते हैं, 10 या नहीं भी खुले, ऐसा भी हो सकता है। तो हर परिदृश्य में, हर सिनेरियो में हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पिछली कक्षा, जैसे मैंने कहा, उसका रिवीजन, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। हम नई कक्षा के काम को अगर लेके चल देंगे तो फिर जो बच्चे पिछड़ रहे थे, जो बच्चे नहीं सीख पाए, वो और पिछड़ेंगे और एक बहुत ही गंभीर लर्निंग क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और उससे बचना है हमको। दूसरा, कुछ हमको स्ट्रक्चर्ड काम करना पड़ेगा। हर सप्ताह, हर दिन, हमारे पास दिन बहुत कम होंगे, तो हर सप्ताह, हर दिन क्या काम करना चाहिए। ये नहीं कि क्या पाठ्य पुस्तक उठाई और हर अध्याय को पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, उसको देखना होगा। एक और पॉइंट है कि अभिभावकों के साथ बहुत जरूरी है कि संपर्क और जुड़ाव रहे, क्योंकि इस स्थिति में सब काम स्कूल में नहीं हो सकता 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में। किस तरह से हम अभिभावकों को संदेश दें, मैसेज दें कि वो घर पे क्या करा सकते हैं, बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होगा स्कूली शिक्षा का। और ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि त्वरित रूप से कुछ उपचारात्मक ढंग से कि हम किस तरह से आगे काम करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना, इस पीरियड में जब हमारे पास समय है, शिक्षकों को तैयार करना कि आप आगे जाके कैसे काम करेंगे, किस तरह से सभी बच्चे सीखें समता के आधार पर, वो हमको कुछ कदम अभी लेने पड़ेंगे। वॉलंटियरिज्म के ऊपर धीर जी के I'd like to amplify some of his messages, क्योंकि ये समता की बात बहुत जरूरी है। विशेष तौर के जो बच्चे रिमोट एरियाज पे हैं, ट्राइबल एरियाज में हैं, अर्बन स्लम्स में हैं, जिनके पास डिजिटल डिवाइस मिलने की चांसेस बहुत कम है, उनके लिए भी पढ़ाई को जारी रखना बहुत 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 जरूरी है, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे ही पीछे हुए हैं। इसलिए बहुत कई रास्ते और कई संपूर्ण तरीके भी हमने सुना धीर जी के साथ से। तो हमारे राज्य में जो यूनिसेफ के ऑफिस है, वहाँ हमने देखा है, बिल्कुल वो जैसे कह रहे थे कि वॉलंटियरिज्म का स्पिरिट और कम्युनिटी लेवल एनजीओ के साथ काम कर, संस्थाओं के साथ काम कर बहुत दूर हम जा सकेंगे। जैसे कि यूपी में 2000 कम्युनिटी वॉलंटियर के साथ जो संस्था काम कर रहे हैं, वहाँ स्पेशली जो बच्चे माइग्रेंट फैमिली के हैं, जो वापस गए हैं, जो हमने देखा था लॉकडाउन के शुरू के समय कितने सारे फैमिलीज 100 माइल वापस गए हैं अपने अपने गांव में। वहाँ बच्चों को उनके साथ काम करने के लिए, उनकी पढ़ाई बढ़ाने के लिए, और सिर्फ डिजिटल माध्यम नहीं, जैसे दीजिए ने कहा, वर्क बुक लेकर फेस टू फेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सिर्फ एक डिवाइस देने से नहीं होगा, उनके साथ काम करना है।
माँ बाप भी बहुत स्ट्रेस है, माता पिता भी बहुत स्ट्रेस हैं इस समय। उनको जरा रिलीफ भी मिलेगा जब वॉलंटियर्स उनके साथ काम करेंगे। तो हमने देखा है कि इन वॉलंटियरों के थ्रू देम 50,000 से ज्यादा बच्चों के साथ शिक्षा चलाने के लिए बहुत काम बढ़ रहा है। करीबन 4,500 गांव में। तो ऐसे एग्जाम्पल यूपी से है, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में ये हो रहा है। हाउ डू वी एम्पलीफाई इट? और वॉलंटियरिज्म का जो स्पिरिट है, स्पेशली जो वॉलंटियर्स है, नेहरू युवा वॉलंटियर्स हैं, कम्युनिटी बड़े भाई बहन हैं, आपके गांव में जो पढ़े लिखे हैं, वो कैसे वॉलंटियर कर सकेंगे? ये अपने देश के लिए बहुत बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होगा अगर हम देखते रहे कि कैसे वॉलंटियर्स आए और हम भी उनको जगह दें, हम भी उनको हेल्प करें so that they can help children themselves. There has been a lot of debate and differing viewpoints on schools reopening. What are your views on it? जो schools को खोलने को लेके काफी बहस हुई है और अभी भी चल रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डिबेट है और व्यू पॉइंट्स भी आपने जैसे कहा डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है। यूनिसेफ believes that schools are places for children, बच्चे जहाँ आकर सीख सकेंगे, खेल सकेंगे, इंटरैक्ट कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है पूरा सुरक्षा के साथ ये हो। तो स्कूल अगर पूरे सुरक्षा के साथ नहीं खुल पाए तो अभी खुलने की टाइम नहीं है। लेकिन कैसे हम खोल सके, इसलिए हम काम भी कर रहे हैं मिनिस्ट्री फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन के साथ, जो एजुकेशन के साथ हाथ मिलाकर स्कूलों में हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, बच्चों को तालीम देना, टीचरों के साथ काम करना, हेड टीचर का बहुत बड़ा रोल है, माता पिता का रोल है इसमें बहुत बड़ा, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कैसे कम्युनिटी को हेल्प कर सकेंगे अपने कम्युनिटी के स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित करने के लिए। तो दिस इज वेयर यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हम एक साथ जुड़कर ग्लोबल एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। और इंडिया में भी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में और डिफरेंट स्टेट्स में भी एनसीईआरटी के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट सेफ स्कूल रीओपनिंग हम एक साथ मिलकर कर सके। इसमें साफ सफाई रखना, स्कूल में कोविड नियामक सफाई और स्वच्छता क्या जो अरेंजमेंट जरूरी है वो करना, और एडिक्वेट जो सामग्री और सुविधाएं जरूरी है, स्पेशली दूसरों से दूरी, ये बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कैसे हम टीचर्स के साथ काम कर कर वी कैन मेक इट जॉयफुल, वी कैन मेक इट एक्साइटिंग फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आएंगे उनकी रूटीन फिर स्टार्ट होगी। और इसमें बड़ी बात यह है कि बच्चे जब घर में बंद रहते हैं, हम सब के जो बच्चे हैं, हम जानते हैं एक कमरे में कई परिवार की एक ही कमरा है, इस कमरे में बच्चे अगर बाहर ना जा सके, खेल ना सके, उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है, वो मूडी हो जाते हैं, खाते नहीं, रोते हैं। For this it's really important, बच्चों का जो long term effect हो सकता है, psychosocial effect from not getting back into their routine, ये देखना बहुत जरूरी है। और हमने जैसे सुना धीर जी से कि एक स्कूल जब खुल जाएंगे तब
not to compress them with too much work. कैसे उनको आस्ते आस्ते bringing them back into that rhythm and that learning, ये सब ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा. मेरा अगला सवाल भी इसी से कंसर्न है कि ये तो बात हुई कि अगर स्कूल्स खुलते हैं तो हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बट अगर स्कूल्स बंद रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि लर्निंग कैसे होगी, और इसके ऊपर यूनिसेफ ने क्या-क्या काम किया है, आप अगर वो हमारे साथ शेयर करें. हमने जी से सुना कितने तरीके से हम कर सकते हैं. We will have to put more energy to it. कि हम कैसे बच्चों तक पहुंच सके, उनके परिवार तक पहुंच सके, कैसे हम वॉलंटियर्स को ला सकते हैं इस आंदोलन में बच्चे so that children can continue learning. और जितने सारे रास्ते हम सोच सकते हैं, सब रास्ते में we have to try it out. At the end of the day, digital, radio, TV, plus volunteers, plus what else can we do? ये हमें सोचना बहुत जरूरी होगा. और एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग ideas हो सकते हैं. We have to help people come up with ideas. District level पे हमारे we have the whole administration at a district level. अपने district के लिए कौन सी बच्चों के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा, वहाँ के लोग समझ पाएंगे. हमारा रोल होगा उनको कैसे हम जो सामग्री, जो चीजें जरूरत है वो कैसे पहुंचा सके, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सपोर्ट जरूरत है वो हम कैसे पहुंचा सके, और एक स्टेट के एग्जाम्पल से दूसरे स्टेट कैसे सीख सके, एक डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कैसे सीख सके. ये नेटवर्किंग बहुत जरूरी होगा. ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम विकलांग बच्चे की बात भूल जाते हैं क्योंकि नंबर्स कम है, लेकिन उनसे पहुंचने तक गैप बहुत दूरी है. तो ऐसे ये भी देखा है कि गुजरात में they have come up with material to help through special educators. Special educator माता पिता के साथ काम कर बच्चों तक पहुंच रहे हैं. यूपी में 10 एपिसोड का एक सीरीज शुरू हुआ जिसको कहते हैं तारा है तैयार. ये सेल फोन में भी देखा जा सकता है और साइन लैंग्वेज यूज होता है उसमें, so that children who have hearing problems are able to understand. तो ऐसे बहुत सारे जितने सारे आइडिया हो, we need more and more ideas to reach more children. We have to challenge ourselves. और क्या सोच सकते हैं, क्योंकि the regular norm that we are used to is no longer going to reach children. So it's a challenge. We have to challenge ourselves. My next question is to both Dr. Yasmin and Dr. Jhingran. I'll start with you, Dr. Jhingran. That what do you think have been the lessons learned in our response and the challenges faced that can be used to reimagine and revitalize the school education system? So इस वाले क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको देखते हुए कोई ऐसे 3 पॉइंट्स आप शेयर करें कि जिसमें हम ये कह सकें कि आगे जाते हुए स्कूल एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे री इमेजिन कर सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आगे एजुकेशन कैसे होगी और इसमें कैसे एक हम ऊर्जा भर सकते हैं. मैं 4 पॉइंट्स कहूंगा पर जल्दी से प्लीज. पहला तो यह है कि जो देखा गया कि स्कूल जितने दिन चलता है और जितने घंटे चलता है वो कई राज्यों में काफ़ी कम है, और अब ये ज़रूरत है कि हम जो टीचिंग आवर्स हैं उनको बढ़ाएं, छुट्टियां कम करें. ये एक डिमांड है इस समय की, क्योंकि स्कूल जब लेट खुलेंगे, अभी तक हम कहते हैं कि आज डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो हमको बचा रही हैं, पर अब नंबर
शिक्षकों का और शिक्षा व्यवस्था का आ गया है, क्योंकि उनको आगे बढ़कर, और शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक इसमें उत्साहपूर्ण हैं, वो करना चाहेंगे, तो एक तरह से शिक्षा में के लिए जो समय उपलब्ध होता है उसको बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज एंड आवर्स। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा जो हमने देखा, जो चुनौती भी है और एक तरह से हम उस पर काम भी कर सकते हैं, कि बच्चों के बुनियादी कौशल जो हैं, भाषा के, साक्षरता के, गणित के, वो पहले से ही पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, और इस दौरान उसमें कमी आई है, जैसे मैंने सर्वेक्षण का जिक्र किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की बुनियादी कौशलों पर बहुत ध्यान दें, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 की, उसमें इस पर बहुत जोर दिया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के नाम से, और ये कहा गया है कि हर बच्चे को कक्षा 3 तक 2025 तक ये बुनियादी कौशल हासिल करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी यहाँ से, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख है, तो इस पर काम होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अच्छी तरह पढ़ सके, पढ़ के समझ सकें, स्वतंत्र रूप से लिख सकें और अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं, और संख्या ज्ञान उनका अच्छा हो। तो ये चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है इंश्योर करना। दूसरा जो हमने देखा इस दौरान और पहले भी, कि बच्चों की भाषा का, जो भाषा वो अच्छी तरह जानते हैं, जो घर की भाषा है, स्पेशली शुरुआती कक्षाओं में, कक्षा 1 से 4 तक लेके 1 से 5 तक, उसका प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे सीखें, समझें, उनमें आत्मविश्वास रहे सीखने का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी परिचित भाषा का प्रयोग हो। जहाँ जहाँ ये वॉलंटियर्स कर पा रहे हैं, वहाँ देखा गया कि बच्चे बेहतर सीख रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका बहुत विस्तार से उल्लेख है, और ये कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, हर बच्चे को अपनी घर की स्थानीय भाषा में शिक्षण देना चाहिए, कक्षा 5 तक कम से कम। मैं ये कहूँगा कि इसके बाद हमको देखना चाहिए किस तरह से हम बच्चों की भाषा का प्रयोग कर सकें, और बहुभाषी शिक्षण के साथ, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ, बच्चे अच्छी हिंदी और अंग्रेजी भी सीखें। अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी हिंदी भी सीखें, चाहे वो अवधी या बघेली और बुंदेली या छत्तीसगढ़ी बोलते हुए आए, उस भाषा के साथ शुरू करें, पर उसके बाद अच्छी हिंदी और अंग्रेजी सीखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरा चीज़ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो मैंने पहले भी कहा था कि अब स्कूल और समुदाय की जो दूरी बन चुकी है पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में, उसको कम करना पड़ेगा। अभिभावकों के साथ स्कूल का रेगुलर संपर्क हो, जुड़ाव हो, बच्चे क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, घर पर क्या हो सकता है, पेरेंट्स के लिए ये संभव हो कि वो टीचर से बात करके बच्चे की खबर ले सकें। तो ये एक मौका है, जब हम ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में अभिभावकों के साथ, समुदाय के साथ काम कर रहे होंगे, घर पे बच्चों के साथ, उसको हम आगे बढ़ाएं, और स्कूल खुलने के बाद भी ये जुड़ाव बना रहे। I would just add a few to those, and I totally agree. उन्होंने जो बोला वो बहुत बहुत जरूरी है। मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमने अब देख लिया है कि रिमोट लर्निंग कितना जरूरी हो सकता है, और इस दूरस्थ शिक्षा को कंटिन्यू के लिए जो प्लेटफॉर्म जरूरत है, कि हम सिर्फ डिजिटल डिवाइस नहीं या ब्लेंडेड अप्रोच से कैसे हम कंटिन्यू कर सके, ये बहुत जरूरी होगा। ये सीखना पड़ेगा हमको। इसके लिए क्या जरूरत है? वी नीड इन्वेस्टमेंट। So it's really good, the national education policy ने जो opportunity दिया है, इसमें invest करना बहुत जरूरी है। At the union level and at the state level, we have to invest, क्योंकि जो बच्चे दूर हैं, उनके पास उन तक पहुंचने के लिए और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें। Teachers training, parents and students coming together, ये इसके लिए investment की जरूरत होगी। मैं थर्ड चीज कहूंगी कि जेंडर इशू को देखना बहुत जरूरी होगा, स्पेशली लड़कियों को कैसे हम we keep the focus on it.
हम बहुत दूर आ सके हैं। या बेटियां भी स्कूल जा रही हैं, more and more girls are completing education। लेकिन कोविड के क्राइसिस के लिए हम ये भी देख रहे हैं कि कई बच्चे already they have gone into working in factories to help their parents। बेटियों की शादी हो जा रही है 18 वर्ष के पहले। बहुत जरूरी है कि जब ये हम बंद करें, और इसको बंद करने के लिए कैसे उनके अभिभावक को हम कुछ स्कीम के साथ जुड़ा सके, so that they don't feel the economic compulsion to send their children either into labor or into marriage। तो ये जेंडर नॉर्म्स एड्रेस करने के लिए बहुत सिर्फ एजुकेशन के स्ट्रक्चर नहीं, we need to bring in all other structures to ensure कि ये बच्चों का जो मूल अधिकार है शिक्षा का, वो हम कैसे इंश्योर कर सके। Education policy is very forward looking। It has very already, even before COVID, हमने देखा कि ICT कैसे इंटीग्रेट कर सके, लर्निंग मेथोडोलॉजीज कैसे बदलाव ला सके, इन सब के बारे में NEP में बात है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है अभी। ये बहुत जरूरी होगा कि हम we give it that importance, क्योंकि अब हम आज जो इन्वेस्ट करेंगे उसका in return आएगा 10-12 साल बाद। It won't be an immediate return, but unless we start now, the whole country will not be reaching the targets it has set itself। तो हम एक साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। Thank you, Dr. Yasmin. We have a lot of other questions also, but आज हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे तब भी पूछना चाहूँगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 2030 है, उसमें जो एजुकेशन को लेके सस्टेनेबल गोल 4 है, आप इस पैंडेमिक को देखते हुए इस गोल की अचीवमेंट को कैसे देखते हैं कि we should continue our efforts and what is going to be the impact in the future? बात ये है कि कोविड के वजह से सारी दुनिया में बहुत सारे देशों में we have slipped back। हमारे जो gains हुए थे over the past decades, ये हम पिछा गए हैं already। COVID, when will it be over? When will it we resume pre-COVID? हमें ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तक स्प्रेड हो रहा है। वैक्सीन की बात चल रही है, लेकिन कब वैक्सीन मिलेगा, कब हम पोस्ट कोविड में पहुंचेंगे, ये we don't exactly know। इसलिए we can't wait till then। अभी हमको एक्ट करना है। अभी we have to start looking at जितने सारे opportunities, जितने सारे अवसर हों, हमको we have to make use of them। चुनौती बहुत रहेंगे, लेकिन the human mind is innovative। और हम कैसे सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं, बच्चों के जो स्किल है, डिजिटल स्किल्स, their financial literacy, as they grow older, बच्चे तो 18 साल तक हो सकते हैं, लेकिन 10-12 साल से तो जो स्किल्स उनको जरूरत है, जो सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है, वो हम कैसे एक्सेलरेट कर सके, अभी हमको काम करना है। तो मैं कोविड, पोस्ट कोविड के लिए वेट नहीं करूंगी। अभी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अभी इनोवेशन जरूरी है, अभी we have to push forward on it। On this positive note, we'd like to bring this session to a closure. I'd like to thank Dr. Yasmin and Dr. Chhingran for taking out their precious time। I think जो आज हमने जिन मुद्दों पे बात की है, ये बहुत important points हैं
और इनसे एक आगे जाकर चर्चा होगी और हम स्कूल्स खुलने के बाद क्या सिचुएशन होगी और हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बेटर स्टेप्स ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।